کہ اس قربانی کو اگر باقی رکھنا ہے تو چاند دیکھتے ہی ڈھول بجا دو. میں نے کہا نہیں، ان کی قربانی میں اتنا دم ہے کہ انہیں ڈھول کی ضرورت ہی نہیں. ان کی قربانی اتنی مہنگی ہے اور اتنی اعلیٰ قربانی ہے کہ آسمان کی آنکھیں اور زمین کی آنکھیں کبھی حسین کی قربانی کو بھول ہی نہیں سکتی. انہیں قربانی والوں کے تمہارے ڈھول کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو زندہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین. حسین کی قربانی 56 سال کی عمر میں قربان ہوئے نا، تو 55 سالہ زندگی کہاں گئی؟ مدن پور والے ماشاءاللہ میں نے سنا کہ یہ مثالی گاؤں اور اس کی شہرت تو باہر یعنی باہر کنٹری میں آپ کا نام ہے، تو کچھ زمینی طور پر بھی ہم لوگ ذرا لگے نا، جب محفل میں بیٹھے تو لگے کہ غلامان مصطفیٰ بیٹھے. اسلام نے کبھی تعداد پہ فخر نہیں کیا، اسلام نے کبھی گنتیوں کو نہیں دیکھا، اسلام نے کبھی گنتی پر نظر ہی نہیں کیا. گنتی تھوڑی ہو مگر کوالٹی ہو، گنتی کم ہو. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ پیچھے کی کرسی خالی ہے، کئی کرسیاں خالی ہیں. میں احساس کمتری کا شکار نہیں کہ میں تقریر نہیں کر پاتا ہوں اس لیے کرسی خالی. میں سمجھتا ہوں آپ سن نہیں پاتے ہیں اس لیے خالی. ہمیں احساس کمتری اس بات کی نہیں. اللہ جسے بٹھائے گا وہ بیٹھے گا، رسول جسے قبول کریں گے وہ بیٹھے گا، حسین جسے چاہیں گے وہ آئے گا، فاطمہ جسے چاہیں گے وہ آئے گا. ہماری آپ کی مرضی کیا؟ ارے جب غوث اعظم کے دربار میں وہی جاتا ہے، غریب نواز کے وہاں وہی جاتا ہے جسے غریب نواز بولا ہے، تو مجال کیا ہے حسین کی محفل میں ہر ایک آ جائے؟ آنے والوں کو گویا حسین نے یاد کر لیا ہے. اب جب یاد کر لیا ہے تو حسین کا فیض لے کے جانا ہے انشاءاللہ. آپ ذرا دیکھیں تو کیا محبت ہے آقا کی حسین سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ پیارے آقا رحمت عالم نے حسین کو گود میں لیا اور کہا بیٹا ذرا زبان نکال. بیٹے نے جب زبان نکالا تو پیارے آقا نے اس زبان کو اپنے منہ کے اندر کر لیا اور کہتے ہیں یمتص کما یمتص الرجل التمر، ایسے چوسنے لگے جیسے بھوکا انسان کھجور کی گٹھلی چوستا ہے. اب ایک حدیث ہے، یہ صرف ابو ہریرہ کا مشاہدہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ جیسے بھوکا انسان کھجور کی گٹھلی چوستا اس طرح حضور چوس رہے. اب یہاں ایک بات ہے، میں علماء کی توجہ چاہوں گا. حسین بہت بڑے ہیں مگر کیا نبی کو حسین سے فیض لینا ہے؟ ارے حسین کی ساری عظمتیں قدم مصطفیٰ کا صدقہ ہے. حسین کی کیا؟ حسین تو غیر نبی ہے، نبیوں کو بھی جو عظمتیں ملی ہیں وہ حضور کا صدقہ ہے. آدم کی عظمت، یعقوب اور یوسف کی عظمت، موسیٰ اور عیسیٰ کی عظمت، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی اخلاق ہے، جو بھی تقویٰ ہے، جو بھی بلندی ہے، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا. کسی کو جو کچھ مل رہا، یہ بڑا نازک مسئلہ. میں ایک بہت بڑے بزرگ کا حوالہ دے دوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جو آپ سناٹے میں مجھے دیکھ رہے ہیں. علامہ بوصیری کہتے کلہم من رسول اللہ ملتمسو غرفا من البحر او رشفا من الدیم. یہ جتنے نبی ہیں سب نبی ہی کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں. کسی کو چلو بھر ملتا ہے تو کسی کو مٹھی بھر ملتا ہے، ملتا ہے مصطفیٰ ہی کی وجہ. تو کہنا یہ ہے کہ حسین کی زبان حضور کیوں چوس رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ حسین کے لعاب میں نبی کے لیے تبرک ہے. ہاں ہمارے لیے ہے تبرک.
मगर उनका लुआब तबर्रुक भी बनेगा तो हुजूर की वजह से। तो फिर हुजूर क्यों चूस रहे हैं? हुजूर क्यों चूस रहे हैं? इसको जब आप सोचोगे तो देखोगे ये हुजूर का चूसना आज के लिए नहीं है, ये 56 साल की उम्र में इसका असर दिखेगा। चूस रहे हैं बचपन में, असर दिखा आखिरी उम्र में। क्या मतलब? नबी की आंख गैब देखती है, हुजूर छुपा हुआ भी जान जाते हैं, और क्यों न जाने जब अल्लाह को देख लिया। अब अल्लाह से ज्यादा कौन छुपा है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। मुस्तफा दीवार के पीछे आप नहीं जानेंगे, मदीने के अंदर क्या हो रहा है आप नहीं जानेंगे, सफा पहाड़ी के पीछे क्या हो रहा है नहीं जानेंगे, हमारे दिल में क्या हो रहा है आप नहीं जानेंगे। अरे ये बहुत छोटी चीजें हैं, सबसे ज्यादा छुपी चीज अल्लाह की जात है, और जब अल्लाह ही को देख लिया तो नबी से अब कुछ छुप ही नहीं सकता। नबी से छुप नहीं सकता। 56 साल की उम्र में जो यजीद का जुल्म करबला में उतरना था, हुसैन को गोद में लेकर मेरे नबी वहीं देख रहे हैं। तो फरमाते हैं बेटा जबान ला मैं चूस लूं, ताकि जो मेरे सीने में ताकत नबूवत है, जो वही बर्दाश्त करने वाली ताकत है, अल्लाह ने जो मेरा सीना 3 बार खुलवा कर जो ताकत रखवाया है, बचपन में खुला, जवानी में खुला, मेराज में जाने लगे तो खुला, कुरान उतरने वाला हुआ तो खुला नबी का सीना। अब नबी के सीने में बेपनाह कुव्वत, मगर करबला आना है हुसैन पर, तो मेरे आका ने हुसैन की जबान को चूस लिया और अपने सीने में जो रूहानी ताकत थी उस ताकत को हुसैन के सीने में मुंतकिल कर दिया, ताकि जब करबला का मैदान हो, यजीद जब जुल्म ढाए, अली अकबर की लाश एक तरफ हो, अली असगर की लाश एक तरफ हो, और मोहम्मद की लाश एक तरफ हो, ये लाशें हुसैन के कदमों में जंजीर न बन सके, बल्कि हुसैन इन कुर्बानियों को देकर के दीन बचा ले, ये मुस्तफा ने ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन शहीद हुए और खानदान हुसैन शहीद हुआ। आपको क्या करना है ये भी तो सोचना है। हमें आपको क्या करना है? हमें आपको ये करना है कि जब मुहर्रम का चांद निकले तो किसी एक दिन अपने घर में फातिहा करा ले और महल्ले में कोई महफिल करा दे, अल्लाह तौफीक दे तो सबील लगा दे, या अपने घर में खिचड़ा बने खा ले और कुछ गरीबों को खिला दे। हुसैन की सारी कुर्बानियों का हक अदा हो गया। इतनी सस्ती कुर्बानी है हुसैन की, जो आपने सिर्फ खिचड़े तक उसको रख दिया, एक दिन की महफिल तक उसको छोड़ दिया। हुसैन की कुर्बानी बहुत आला है, जिसने सारी तारीखों को पीछे कर दिया। ये उलमा जानते हैं कि आशूरे की रात में एक तारीख नहीं 50 तारीखें हैं। जो आशूरे वाली का दिन है, न जाने कितने नबियों के साथ अनोखे अनोखे किस्से हुए, मगर हर किस्से का रंग कम है, हुसैन का रंग ज्यादा है। दुनिया जितना हुसैन को जानती है, किसी नबी की उस तारीख को उतना नहीं जानती। क्यों? इसलिए कि इनकी कुर्बानी बहुत आला है। तो जब कुर्बानी आला है तो उसमें कोई सबक भी तो है। क्या सबक है? सिर्फ और सिर्फ हम शहादत और यजीद का जुल्म सुन करके थोड़ी देर के गले गमगीन हो जाएं बस। क्या मेरे हुसैन ने इसलिए शहादत दी थी कि नाना की उम्मत गमगीन हो जाए? हमें इस पर गौर करना है कि शहादत तो हुई 56 बरस की उम्र में, ये जो 55 साला जिंदगी हुसैन की है ये किसके लिए है? हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में बिलखुसूस
जहां देखो सिर्फ जिक्र शहादत, और लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मौलाना साहब से कह दीजिएगा जरा शहादत पे खूब खुल के बोल देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मरीज आप हो, डॉक्टर हम हैं। मरीज अगर खुद कहे डॉक्टर से कि ये दवा लिख दो तो ये मरीज का नुकसान है। मरीज अपना मर्ज बताए, ये डॉक्टर का काम है नुस्खा वो तजवीज करेगा। आपको शहादत की जरूरत नहीं है, आपको इबादत की जरूरत है। तवज्जो, इस कौम को क्या किसी मैदान में कल जाके शहीद होने की जरूरत है? अरे शहादत का मौका तो किसी किसी को मिलता है, वो एक कंडीशन होती है जब शहादत मिल जाती है। शहादत एक दर्जा है जो अल्लाह अता करता है। तुम दुनिया में पैदा हुए हो शहादत के लिए नहीं, किसी किसी को शहादत मिलती है, मगर इबादत सबके लिए है। इबादत सबको करना है। मदनपुर वालों कभी गौर किया कि जिस हुसैन की शहादत में सुन करके आप आंखों से आंसू बहाते हो, उनकी इबादत कैसी थी? कभी इस पर तवज्जो किया? कैसी इबादत थी? आज हम तो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। अगर हमको मदऊ किया है जलसे वालों ने तो आधा किलोमीटर क्या 100 मीटर भी हमें महंगा पड़ेगा कि अरे यार क्या तुमने दावत दिया है, पैदल जाना है क्या? आज हमारा ये हाल है। जरा हुसैन का मसला देखो, कितने आला घराने के हैं वो कि जिब्रील भी बगैर इजाजत उनके घर में नहीं जाता है। घराना इतना आला कि जिब्रील जैसे फरिश्ते भी बगैर इजाजत के जिनके घर नहीं आते, जिनको हुजूर झूला झुलाते और खुद जिब्रील झूला झुलाते, नबी जिन्हें कंधे पे बिठाते और जिनकी जबान चूसते, इतने नाजो नेमत में पलने वाले हुसैन ने 25 मरतबा मक्का मदीना से मक्का पैदल जाकर के हज किया, दुनिया वालों को सबक दिया। ऐ दुनिया वालों, ऐ नबी की उम्मत, तुमसे मेरी शहादत न देखना, मेरी इबादत भी देखना। तुम्हें इबादत की भी जरूरत है और वक्त आ जाए तो शहादत। 25 हज हमने कितनी फजर पढ़ी है पैदल जाके। आज का जवान अगर गांव में मस्जिद ना हो और जुमा 1 किलोमीटर पे जाना पड़े तो मोटरसाइकिल ना हो, अब्बा कहे जाओ नमाज पढ़ाओ, तो हमारा जवान नहीं जाएगा कि मोटरसाइकिल है ही नहीं, कैसे चले जाए? आप जवान हैं, मुझे तो शर्म आती है जवान कहने में। जुमा की नमाज के लिए आप 1 किलोमीटर न जा सके और मुहर्रम का चांद निकले तो या हुसैन कहने के लिए निकल पड़े। ये कौन सा अंदाज है? हुसैन तो घोड़ा होते हुए, ऊंट होते हुए, अरे उन्हें घोड़े और ऊंट की क्या जरूरत थी? सहाबा हुसैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर हुसैन चाहते तो सहाबा अपने कंधों पर बिठा करके उन्हें मक्का तक पहुंचाते। मगर मेरा हुसैन पैदल जाता है, 1 मरतबा नहीं 25-25 मरतबा जाता है। ये सबक है हुसैनियों के लिए कि अगर तुम्हें रूह हुसैन को खुश करना है तो हुसैन पैदल हज करने गए हैं, कम से कम तुम नमाज पढ़ने चले जाओ, मस्जिद में तिलावत करने चले जाओ, जलसों में कुरान सुनने और हदीस सुनने के लिए चले जाओ। ये हुसैन का पैगाम है। तो जवानों को हुसैन की इबादत भी देखना है। अच्छा, हुसैन की जिंदगी इतनी छोटी नहीं है किसी वो शहीद हो गए। अगर सिर्फ डायरेक्ट शहीद हो जाते तो मुझे लगता है कि वो 55 साल फिर आपने क्या किया हो? शहादत तो आखिर में हुई, बचपन में हुजूर की हदीसों को फैलाया, काम किया है मेरे हुसैन। रसूलुल्लाह की हदीसों को सहाबा से सुना भी है और सहाबा और ताबईन को सुनाया भी है। मेरे हुसैन ने उम्मत का फलाही काम बहुत किया, उम्मते मुस्लिमा के बिगड़े हुए कामों को। बल्कि मैंने तो तारीख में पढ़ी कि इमाम हसन ने 2 मरतबा अपने घर का पूरा माल खुदा की राह में दे दिया। जानते हैं हमारे लोग
جو اپنے امام سے 100 روپے کا مسافہ نہ کرے جمعہ کے دن، جو عید کی نماز پڑھ کے چلے آئے اور عید جیسی نماز پڑھانے والے امام کو 50 روپیہ نہ دے سکے۔ ہم کہتے ہیں یا حسن یا حسین، کس چیز کا نام بھائی؟ کم سے کم کچھ تو ان کے پیچھے چلے نا۔ 2 مرتبہ اپنے گھر کا مال خدا کی راہ میں پورا کا پورا ایک ٹکڑا دے دیا خدا کی راہ میں، اور 3 مرتبہ آدھا آدھا مال خدا کی راہ میں دیا۔ تو حسن و حسین سے صرف شہادت نہیں سننا ہے، ان کی سخاوت بھی سننا ہے۔ آپ کو تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سخی بنائیں۔ جب سخی بنتا ہے نا بندہ، تو سخاوت کے لیے